Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and today we have to study the topic of respiration. ठीक है, this is the beginning of the topic of respiration. फिर EMP pathway, glycolysis and all will be studied in the next lecture. See, what is respiration? Respiration is a process in which assimilated food is oxidized to give energy. The food which is assimilated, the food which is mixed with the blood and which has reached each and every cell of the body, and that food is either oxidized sometimes or it may not be oxidized, because in aerobic respiration oxygen combines with the food, and in anaerobic respiration oxygen does not combine with the food. It may combine in small amounts or it may not combine. So there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration is a respiration which takes place in the presence of air, and anaerobic respiration is a respiration which takes place either in very little oxygen or which does not require oxygen at all. ठीक है, there are two types of respiration, and respiration is a complex process. It has two steps. Respiration takes place in two steps, and these are the two steps of respiration. I have already written to save time. See, external respiration, or it is also called body respiration or breathing. Breathing is the first step of respiration, and internal respiration or cellular respiration is the second step. This is the difference. The first step of respiration is breathing. Breathing is the first step of respiration, and internal or cellular respiration, the respiration which takes place inside the cell, is called cellular respiration. It is the second step of respiration. Let us now see the other differences between external respiration or body respiration. What is external respiration? Inhalation of air containing more oxygen. Remember, we should not say that we inhale oxygen. We inhale air, and that air contains oxygen. So inhalation of air containing oxygen, and exhalation is expiration, बाहर निकालना. Inhalation of air containing more oxygen and exhalation of air containing more carbon dioxide is called breathing. इसको external respiration भी कहते हैं क्योंकि ये external होता है. Only क्या होता है, हम air inhale करते हैं, air lungs में जाती है, और ऑक्सीजन lungs उसमें से ऑक्सीजन को अलग निकाल लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को हम एयर के साथ बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर. तो ब्रीदिंग को ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि इसमें सेल में ऑक्सीजन नहीं जाती. इसमें ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचती है? ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, और लंग्स में की बासी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है. सो एटमॉस्फेयर में की एयर कहाँ, एटमॉस्फेयर में की एयर लंग्स में जाती है, और लंग्स में की एयर एटमॉस्फेयर में जाती है. तो इसमें सिर्फ एयर का इनकमिंग एंड एयर का आउटगोइंग होता है, तो इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और या ब्रीदिंग कहते हैं. व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? फूड इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप टू रिलीज एनर्जी. फूड जो होता है, स्पेशली ग्लूकोज, खास करके ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है. ऑक्सीजन ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप जलाती है, और थोड़ी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे सेल को डैमेज नहीं होता. थोड़ी, और मैंने आपको इससे पहले समझाया ऑक्सीजन का काम जलाना होता है. बट रिमेंबर, एग्जाम में ऐसा मत लिखना ऑक्सीजन बर्न्स द फूड. बर्न का मतलब होता है एकदम से जल के हीट बनाना, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है थोड़ी ऑक्सीजन थोड़े फूड को हल्का थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज में हीट प्रोड्यूस करते रहती, थोड़ा जलाती, स्टेप बाय स्टेप जलाती है. तो स्टेप बाय स्टेप धीरे थोड़ी हीट एनर्जी रिलीज होती है. फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो हीट एनर्जी से, और वो हीट एनर्जी को हमारी बॉडी फिर दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है. तो रिमेंबर, इन ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन नहीं होती. क्या होता है, एयर आती है, लंग्स में चली जाती, ऑक्सीजन वाली एयर लंग्स में चली जाती, और CO2 वाली एयर लंग्स में से बाहर आ जाती है एटमॉस्फेयर में. तो इसमें क्या हो रहा है, एयर का लंग्स में आना, ऑक्सीजन वाली एयर का लंग्स में आना, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर का लंग्स में से बाहर निकल जाना. सो ओनली इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ एयर हो रहा है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता. तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. इसमें कोई केमिकल, ब्रीदिंग में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. एक्सटर्नल या बॉडी रेस्पिरेशन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. बट इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है
उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। अब वो क्या केमिकल रिएक्शन होती है, तो हमारी टेक्स्ट बुक में ये केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है। अगर आप नॉलेज के लिए याद रखना चाहो तो मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ कि वी इनहेल मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, एरोबिक का लिख रहा हूँ। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन मैं लिख के दे रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 6O2 प्लस सबसे पहले तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस इसके साथ कंबाइन होती है 6O2। ये नंबर जो 6 मैंने लिखा हूं, ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये हम साइंस 1 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे और बहुत इजीली आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकोगे जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 साइंस 1 पढ़ा दूंगा। तो C6H12O6, ये व्हाट इज दिस, ग्लूकोज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। एंड व्हाट इज दिस, ऑक्सीजन गैस। वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन which takes place in the presence of air. So glucose and oxygen दोनों कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन फूड को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जलाती है, ऑक्सीडाइज करती है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जलाने को ऑक्सीडाइज करना बोलते हैं। और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं एयर के साथ और वो फूड को जलाती है, तो उससे क्या बनता है, धुआं बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हम बाहर निकाल देते हैं, प्लस 6H2O। और इसके साथ में मॉइस्चर भी बनता है। रिमेंबर, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम सिर्फ एयर के साथ CO2 रिलीज नहीं कर रहे, उसमें मॉइस्चर भी होता है, हल्का हल्का पानी भी रिलीज होता है, मॉइस्चर। तो सांस छोड़ते हैं तो CO2 के साथ मॉइस्चर भी रिलीज होता है। प्लस आप कभी देखे ना, कार में गाड़ी में जाते रहते, कोई कोई लोग है ना कार के उसमें फॉग उड़ा देते, ऐसा कार के कांच पर ऐसा कर देते, फिर उसमें दिल बना देते और मोबाइल नंबर लिख देते। तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अभी मैं यहाँ एनर्जी लिख रहा हूँ, बाद में हम एनर्जी की जगह ATP लिखेंगे। तो ये एनर्जी बन रही है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसको हम मॉइस्चर नाम दे देते हैं, वाटर या मॉइस्चर बनता है, प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होता है। दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ये इंटरनल रेस्पिरेशन है और ये एरोबिक वाला रेस्पिरेशन है जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। एनारोबिक का भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन हम लोग उसको एनारोबिक को बाद में पढ़ेंगे। तो सी सेकंड डिफरेंस समझ में आया। ब्रीदिंग में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इंटरनल रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग यानी सांस लेना, ऐसा करना और सांस बाहर निकालना, ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, वो भी सभी एनिमल्स में नहीं होता। जैसे हम लोग में होता है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, तो ये हम लोग में ब्रीदिंग होता है ना, लंग्स का फूलना, छोटा होना, ये हम लोगों में होता है, सभी एनिमल्स में नहीं होता और प्लांट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन फूड को जलाती है, ये जो है ये इंटरनल, वैसे ऑक्सीजन रह के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल के अंदर का रेस्पिरेशन सभी एनिमल्स में भी होता है और सभी प्लांट्स में भी होता है। सब एनिमल सेल्स में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है और सब प्लांट सेल्स में भी इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। रिमेंबर, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि प्लांट में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नहीं, रिमेंबर, जिस तरह हम सांस लेते हैं, हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हम CO2 रिलीज करते हैं, ऐसा ही प्लांट्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। लेकिन मैंने इनहेल और एक्सहेल वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, उनमें ब्रीदिंग नहीं होती है, सांस नहीं लेते ऐसा वो, लेकिन प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करना पड़ता है और CO2 रिलीज कर सकते हैं वो रात के समय। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होती है। कंफ्यूज मत होना, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात। रिमेंबर, लेकिन याद रखना कि
प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन क्या है? ये इट इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फूड। फूड में ऑक्सीजन मिलके उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कभी कभी प्लांट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है प्लांट्स में? जब किसी सीड को हमने जमीन में लगाया, जैसे ये मैंने सीड को जमीन में बो दिया, समझो ये एक चना है, चना मैंने चने का झाड़ लगा रहा हूं मैं, मुझे चने का झाड़ लगाना है, मैंने एक चने का दाना जमीन में बो दिया, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया। अब इसको तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लेकिन चने को तो रेस्पिरेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस समय ये कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और जब वो पूरी तरह बड़ा बन जाएगा और वो जब ग्रो हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, चने का झाड़ बन जाएगा, तो वो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन अगर चना पानी में डूबा हुआ है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। आपने रात में चने को भिगो कर रख दिए पानी में, आपने चने को पानी में भिगो कर रख दिए, तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता। एनारोबिक रेस्पिरेशन करके उसको एनर्जी मिलती है और फिर उसमें से धीरे धीरे स्प्राउट निकलती, कोम निकलती है। आप देखते हैं ना चने में से कोम निकलती है, रात में भिगो कर रखते हैं। तो जमीन में अगर मैंने चने को डुबा दिया तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ह्यूमन बीइंग्स में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। जैसे अगर मैंने कार से रेस लगा लिया, अंसार सर इज रनिंग अगेंस्ट अ कार, एक कार है और मैं दौड़ रहा हूँ। अब मुझे आपको मालूम है कार तो बहुत फास्ट दौड़ती है, बहुत फास्ट चलती है, और मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ नॉर्मल, तो मैं तेज दौड़ूंगा और क्योंकि मुझे कार से रेस जीतना है। लेकिन मैं जितना ज्यादा तेज दौड़ूंगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ेगा, उतना ज्यादा फूड को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, फूड को जलाना पड़ेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन मेरे नाक में तो 2 ही होल्स है और इतनी सारे फूड को जलाकर इतनी सारी एनर्जी बनाने के लिए मैं ऑक्सीजन कहाँ से लाऊंगा? तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मुझे। ऐसे समय में जब हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है लेकिन हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकते, ऐसे समय हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। बैक्टीरिया और यीस्ट में, बेकर्स यीस्ट मालूम, बेकरी वाले मिलाते हैं केक, ब्रेड बनाने, डबल रोटी, बन, नान बनाने के लिए। तो बैक्टीरिया एंड यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कभी तो बात समझ में आई, कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली किस में होता है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट में होता है। क्या ह्यूमन बीइंग्स में कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है? हाँ, वैसे हमेशा ह्यूमन बीइंग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एयर के साथ। लेकिन कभी कभी जब हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और हमको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ऐसे समय हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। कौन से रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती? एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती। जब ऑक्सीजन रहेगी तो बहुत सारे फूड को बहुत सारी ऑक्सीजन जलाती तो बहुत सारी एनर्जी बनती है। लेकिन जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हम, तो एनर्जी बहुत कम बनती है। और वैसे भी बैक्टीरिया और यीस्ट की बॉडी बहुत छोटी होती है तो उनको एनर्जी कम चाहिए, इसलिए उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो एनारोबिक हो जाता है। आई होप आप ये सब में कंफ्यूज ना हुए हो। और उसके बाद फिर प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब प्लांट सीड रहता है, जर्मिनेट होते रहता, सीड फूट के कोम निकलती रहती है, उस समय वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी प्लांट ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है। कहाँ से? क्या प्लांट की नाक होती है? नो, प्लांट के पूरे बॉडी से वो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है। प्लांट की रूट्स भी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है, प्लांट्स की स्टेम भी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है, प्लांट्स के लीव्स भी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं। और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनती है उस ऑक्सीजन को भी यूज कर लेते हैं। वो सब ऑक्सीजन से फूड को जलाते हैं और वो फूड को जलाकर एनर्जी बनाते हैं प्लांट्स। लेकिन क्योंकि प्लांट्स दौड़ भाग नहीं करते इसलिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो एनर्जी कम चाहिए तो प्लांट्स को कम ऑक्सीजन में भी उनका काम चल जाता है। अंडरस्टूड? ये हो गया। अब
दूसरा हमारी टेक्स्ट बुक में एक गिव पूछा है कि गिव हाँ ये पूछा है कि सम प्लेयर्स आर सीन, देखो ऑन पेज नंबर 12 एक क्वेश्चन पूछा, यूज योर ब्रेन पावर, हॉट्स का क्वेश्चन है, व्हाई मे बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दीज फूड स्टफ्स। बोला है कि जो क्रिकेट प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो लोग बीच बीच में कुछ ब्रेक लेकर, थोड़ा देर का ब्रेक लेके कुछ खाते हैं। क्यों खाते होंगे? वो शौक होता है खाना खाने का या मजा आता है उनको खाने में? नो, वो इसलिए खाते हैं ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिले, तुरंत एनर्जी मिलने वाली चीजें वो खाते हैं, ग्लूकोज से बनी हुई कोई चीज, ताकि जल्दी से वो खाएंगे, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी, जल्दी से एनर्जी बन जाएगी। सिंपल आंसर है। सो दे ईट सच अ फूड बिकॉज दे वांट टू हैव इंस्टेंट एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट अकर, कैन यू रिकॉल में? तो अभी हमने पढ़ लिए, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी बनाने वाली प्रोसेस का नाम रेस्पिरेशन है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेंगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो हार्ट, लंग्स, किडनीज, किसी भी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो धीरे धीरे ये बॉडी के सेल्स मरना चालू हो जाएंगे, है ना। किसी की जान लेना हो तो हम क्या करते? अगर आपको अंसार सर की जान लेना है तो आप क्या करोगे? एक तकिया लाओगे, झाड़ा सा पिलो, और वो पिलो मेरे मुंह को दबा दोगे तो मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और 6 मिनट तक अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली तो मेरे बॉडी के सेल्स मरना चालू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके ब्रेन के सेल्स मर गए, मतलब पूरी बॉडी मर गई। इस तरह से ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऐसा होता है। अब उसके बाद ऑन पेज नंबर 13 पूछा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ऑब्जर्व एंड लेबल द डायग्राम गिवन बिसाइड। वहां पर एक डायग्राम दी हुई है, उसको लेबल करने के लिए कहा है, तो मैं वो डायग्राम को न सिर्फ लेबल बल्कि हम शॉर्ट में वो डायग्राम को समझ भी लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, फिर हम उसको डायग्राम को ध्यान से पढ़ लेंगे। लुक एट द डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन। ठीक है, वो डायग्राम को देखो। भले मुझे मालूम है मेरी डायग्राम्स अच्छी नहीं रहती है, इसलिए मैंने रफ डायग्राम लिखा है, और सच में वो रफ है। सबसे पहले ऊपर में देखो, ये नेजल कैविटी, हमारे नाक में जो होल्स होते हैं ना, नाक में गड्ढे होते हैं, इनको नेजल कैविटी, कैविटी इज एम्प्टी स्पेस, नाक में एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, ताकि सच में वो खाली नहीं होती, नाक में बाल होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में क्यों रीजन पूछा है कि नाक में बाल क्यों होते हैं, क्या रीजन है? तो नाक में बाल इसलिए होते हैं ताकि हम जब एयर इनहेल करेंगे तो कचरा अटक जाना चाहिए, डस्ट पार्टिकल्स अटक जाना चाहिए, नहीं तो लंग्स में क्या होगा, कचरा भर जाएगा। कुछ कुछ टीचर्स में ऐसा हुआ है कि वो डस्ट वाला चौक यूज करते थे, मिटाते थे तो बहुत डस्ट उड़ता था, और उनके एयर के साथ में बहुत सारा, उनके लंग्स में बहुत सारा डस्ट भर गया था। सो दिस इज द नेजल कैविटी, नाक का होल। नेजल कैविटी का रास्ता देखो यहाँ से घूमकर जा रहा है और ये इधर आया, एंड दिस इज द ओरल कैविटी, ये मुंह की कैविटी है, खाली जगह मुंह के अंदर की खाली जगह, और जहां नाक वाला रास्ता और मुंह वाला रास्ता एक साथ मिलता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, वैसे फेरिंग्स को जो है वो हलक भी बोलते हैं, फेरिंग्स को हलक भी बोलते हैं। कुछ कुछ लोग हिंदी में, उर्दू में हलक बोलते हैं, हलक, हलक में निवाला अटक गया बोलते। तो फेरिंग्स यानी क्या है, वो जगह जहां नाक वाला रास्ता और मुंह वाला रास्ता मिलता है। अगर आपको सर्दी हो गई और आपने सर्दी को ऐसा खींचे, ऐसा खींच लिए, तो वो सर्दी आपके मुंह में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुंह का और नाक का रास्ता मिला हुआ है। तो जहां ये दोनों रास्ते मिलते हैं उसको फेरिंग्स बोलते हैं, हलक बोलते हैं। और उसके बाद ये लैरिंग्स है, यहाँ का लैरिंग्स होता है साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस होते हैं। जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक देयर आर वाइब्रेशंस हियर, तो ये लैरिंग्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये जो रास्ता है, एक जो पाइप है ट्रैकिया, सांस लेने का पाइप, अपनी बुक में लेबल करने में ट्रैकिया के लिए दिया है कि कुछ नहीं दिया, फेरिंग्स दिया है, लैरिंग्स के लिए लेबलिंग दिया है। और फिर बस लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स ये कंठ होता है, यहाँ पर है ना टेकड़ा चढ़ा होता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड एडम्स एप्पल, बोलते गॉड ने बोला था एप्पल ट्री के पास मत जाओ, वो एप्पल नहीं खाना, लेकिन एडम ने एप्पल खा लिए बोले, तो एप्पल उनके गले में अटक गया बोले यहाँ, है ना। तो बाइबल में लिखा है कि एडम ने एप्पल खाए,
और मुस्लिम लोग बोलते हैं कि एडम ने गेहूं का दाना खाया, बोलते बहुत बड़ा गेहूं का दाना था बोलते उस समय। तो एक्चुअली ना तो बाइबल में ना तो कुरान में कहीं लिखा नहीं है कि वो एप्पल था या गेहूं का दाना था, ये लोगों ने अपना अंदाजा लगाया है सब में। तो एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। लैरिंक्स यहाँ पर जो फूला हुआ होता है, इट इज साउंड बॉक्स, यहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज द ब्रोंकस, ब्रोंकस का प्लूरल ब्रोंकाई होता है, जैसे मैथ्स में रेडियस का प्लूरल रेडियाई रेडाई होता है, उसी तरह ब्रोंकस का प्लूरल ब्रोंकाई। तो हमारे दो ब्रोंकाई होते हैं और फिर वो ब्रोंकाई कहाँ जाके खत्म होते हैं, तो बारीक बारीक पाइप्स में खत्म होते हैं और ये बारीक बारीक पाइप्स को कहते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल ये याद नहीं रखना जरूरी नहीं है, ब्रोंकियोल। और हर एक छोटा छोटा ब्रोंकियोल जाके कहाँ खत्म होता है, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे बलून। अब ये बात ध्यान से समझना कि हमारे लंग्स में ऐसा नहीं है कि बस 10-10 रुपए वाले दो बड़े बड़े बलून लगा दिए और उसमें एयर भर रहे। नो, हमारे लंग्स में ऐसे छोटे 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 बलून से मिलकर हमारा लंग बना हुआ है। अब आप कहोगे सर लंग, हमारा ह्यूमन बींग्स के जो लंग्स है वो एक सिंगल बलून से क्यों नहीं बने, बड़े बड़े एक एक बलून से क्यों नहीं बने, इतने छोटे छोटे बलून से क्यों बनाए? तो जिसने हमको बनाया वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ना, जिसने ये दुनिया बनाया वो मोस्ट लॉजिकल है। चार्ल्स डार्विन ने तो कुछ भी बोल दिया था, लेकिन जिसने बनाया वो बहुत समझदार और बहुत नॉलेजेबल है, लॉजिकल है। तो ये छोटे छोटे बलून्स होने से बेनिफिट क्या होता है? अगर समझो कपड़ा बांटना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कपड़ा, गरीब लोगों में कपड़ा बांटने का प्रोग्राम है और मैंने 200 किलो के खली को बुलाया, 200 किलो मांस वाला खली आया और खली के हाथ से गरीब लोग में कपड़े बांट रहे। तो 10 मिनट्स में एक मिनट में कितने कपड़े बांटेगा खली? 1 मिनट में एक जन को ड्रेस देगा। ये ऐसा ड्रेस की थाली आएगी, थाली में ड्रेस का कपड़ा रखा होगा और वो बोलेंगे ये लीजिए भाई, ये लीजिए बहन जी। एक एक मिनट में एक एक कपड़ा बटेगा। और खली कितने किलो का है? अकेला खली है 200 किलो का। उसके बजाय अगर मैं 20-20 किलो वाले 10 बच्चों को बुलाकर लेकर आ जाऊं, तो छोटे छोटे 20-20 किलो वाले 10 बच्चे, तो कितने किलो के हो गए? सब 10 बच्चे मिला के 200 किलो के हो गए। और 10 बच्चों के हाथ से कपड़े बांटने का काम करूं तो कौन सा काम जल्दी होगा? खली वाला काम जल्दी होगा या वो 10 बच्चों वाला काम? छोटे छोटे 10 बच्चे जल्दी जल्दी काम करेंगे। 10 लोगों के हाथ से जल्दी से 1 मिनट में 10 ड्रेसेस बांटने का काम होगा। बस वैसे ही छोटे छोटे एल्वियोलाई होने से, छोटे छोटे बलून्स होने से हमारे लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही, और ब्लड हमारे लंग्स में आकर रुकता थोड़ी है। ब्लड देखो, ये ब्लड कहाँ से आ रहा? हार्ट से। क्या लेकर आ रहा है ब्लड? CO2 लेके आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा। ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ब्लड में। आरबीसी के रेड ब्लड सेल्स के अंदर भर के आ रही है CO2। जैसे ही यहाँ पर ब्लड आएगा लंग्स के पास, तो एक लंग के पास आया तो इट विल डिवाइड इनटू ब्रांचेस। ये जो एक बड़ी ब्लड वेसल है, एक जो खून की नस है, ये बारीक बारीक ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाएंगी, बारीक बारीक खून की नस में डिवाइड हो जाएंगी। मैंने कितने ब्रांचेस बनाए हैं इसके? 3, 1, 2, 3। मैंने 3 ब्रांचेस बनाए, लेकिन रियल लाइफ में कितनी होती है? हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस होती है, सैकड़ों ब्रांचेस होते हैं। सब ब्रांचेस में थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है और ये जो ब्लड वेसल्स है, बारीक बारीक जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, सेमी परमिएबल होती है। मतलब जैसे कोई पतला सा रुमाल हो, रुमाल के अंदर बारीक बारीक होल्स होते हैं। अगर मैं इधर से फूंक मारूं रुमाल में, ऐसा, ये रुमाल है समझो, और ये रुमाल में मैं इधर से फूंक मारूं, या एग्जांपल समझाने के लिए समझो मेरे पास ये रुमाल है, ये रुमाल है, इस रुमाल में बहुत छोटे छोटे होल्स है। अगर मैं इधर से फूंक मारूंगा तो उधर से हवा आएगी, क्योंकि इसमें बारीक होल्स है, उसमें से एयर ट्रांसपोर्ट हो सकती, उसमें से लिक्विड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लेकिन बड़े पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स में भी बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। और जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई में भी बहुत सुई की नोक से भी ज्यादा बारीक बारीक होल्स होते हैं। तो ये एल्वियोलाई, जब मैं इनहेल करूंगा ऐसा, तो एल्वियोलाई एयर से भर जाएंगे, इसमें ऑक्सीजन रहेगी। ये एल्वियोलाई में क्या रहेंगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ये बलून, छोटे छोटे बलून फूल जाएंगे। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, तो ब्लड के पास क्या ज्यादा है? CO2 ज्यादा है। एल्वियोलाई के पास क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा है। तो क्या करेंगे? एल्वियोलाई अपनी ऑक्सीजन ब्लड को दे देंगे। और इतने सारे एल्वियोलाई होने का बेनिफिट ये है कि सब अगर एक साथ ऑक्सीजन दे देंगे ब्लड को, तो विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में
पूरी ऑक्सीजन ब्लड को देने का काम जल्दी से हो जाएगा। जैसे 10 बच्चों ने 10 ड्रेसेस जल्दी से बांट दिए, अकेला खली धीरे धीरे बांट पाता था, तो उसी तरह ये जो छोटे छोटे एल्वियोला है सब के सब एट द सेम टाइम, सब जैसे ब्लड आता तो सब बोलते ये लो ऑक्सीजन, तो ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाती और ब्लड बोलता है मेरे पास CO2 बहुत है, तो ब्लड क्या करता है एल्वियोलाई को CO2 दे देता है और एल्वियोलाई ब्लड को ऑक्सीजन दे देते। सो देयर इज अ गैसियस एक्सचेंज हियर, ब्लड ने CO2 दिया एल्वियोलाई को और एल्वियोलाई ने क्या दिया ब्लड को ऑक्सीजन दी, एक्सचेंज हो गया अदला बदली, और फिर ब्लड जल्दी से ऑक्सीजन लेके यहाँ से O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड अब अपना आगे काम करने चला जाएगा। कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा, वो पूरा अभी मैं नहीं समझाऊंगा, वो एक लंबी कहानी है। तो CO2 वाला ब्लड आया, एल्वियोलाई को CO2 दे दिया और एल्वियोलाई ने उसको ऑक्सीजन दे दिया और वो ऑक्सीजन पिकअप करके अब ये ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड पूरे हमारा ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देता है और हर बॉडी पार्ट में, हर बॉडी के सेल को ऑक्सीजन मिलती है, तो वो ऑक्सीजन से फूड को जलाकर एनर्जी बनाता है। तो ऑक्सीजन का फूड के साथ कंबाइन होना और धीरे धीरे फूड को जलाना, ये इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और जैसा ये लंग में हुआ वैसे ये लंग में होता है। आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग्स लंग होते हैं, हमारे 2 लंग्स होते हैं, ये लंग और ये लंग। अब ये वाला लेफ्ट लंग है, एग्जाम में गलत मत करना, डायग्राम बनाओगे तो दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस इज द राइट लंग, क्योंकि ये आदमी आपके तरफ देख रहा है या ये औरत होंगी तो जो भी होगा आपके तरफ देख रहा है ऐसा, तो इधर साइड वाला ये राइट लंग रहेगा और इधर वाला लेफ्ट लंग रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको देख रही है, समझो तिरछी नजर से, इसकी नजर तो उधर है, मुंह तो उधर है, लेकिन आपको देख रहा है, समझो। और रेस्पिरेशन वॉलंटरी प्रोसेस है या इनवॉलंटरी प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली इनवॉलंटरी प्रोसेस है। अप टू अ सर्टेन लिमिट हम अपने लंग्स को रोक सकते हैं, हम सांस रोक सकते थोड़ी देर, लेकिन पूरी तरह हम सांस हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए हम सांस नहीं रोक सकते, या तो मर जाएंगे फिर। तो डायफ्राम क्या है, इट इज अ मस्क्यूलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ये डोम जैसा यानी ऐसा आर्क जैसा, मैथ्स में होते हैं ना आर्क ऑफ अ सर्कल, आप मारते हैं ना आप लोग मैथ्स में, ऐसे आर्क, तो आर्क शेप का डायफ्राम होता है, ये मसल्स का बना होता है और ये क्या करता है, तो एक बार ऊपर धक्का मारता है, जैसे ये डायफ्राम ऊपर धक्का मारता है तो लंग्स चपक जाते हैं, लंग्स प्रेस हो जाते हैं, जैसे लंग्स प्रेस होते तो एल्वियोलाई की CO2 बाहर निकल जाती है। फिर ये डायफ्राम नीचे सरकता है, जैसे डायफ्राम नीचे सरकता है तो एयर आके लंग्स में भर जाती है। अगर मेरे पास एक एम्प्टी सिरिंज हो, इंजेक्शन, उसकी नीडल निकाल लिया मैंने और खाली सिरिंज है मेरे पास, खाली इंजेक्शन है, नीडल निकला हुआ, और मैंने उसको ऐसा नीचे खींचा, उसके पिस्टन को पीछे जो डिच्चू रहता है उसको नीचे खींचा मैंने, तो क्या होगा उसमें एयर भर जाएंगी, तो जहां खाली जगह नहीं हो उसमें एयर भर जाती है अगर एयर में हो तो वैसे ही जब ये डायफ्राम नीचे जाता तो लंग्स का साइज, लंग्स का वॉल्यूम बड़ा हो जाता, जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बड़ा हो जाता तो एयर ये लंग्स के अंदर आके अपने आप भर जाती है। ठीक है, और वो एयर के साथ ऑक्सीजन आ जाती, फिर ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन को लेके चला जाता है, फिर डायफ्राम ऊपर धक्का मारता है, तो डायफ्राम जैसे ऊपर धक्का मारता तो एल्वियोलाई कॉम्प्रेस होते, जब एल्वियोलाई कॉम्प्रेस होते तो उसमें से CO2 और एयर निकल जाती है। इस तरह डायफ्राम क्या करता है, ऑल्टरनेटली ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन करता है। कितने बार करता है, तो ह्यूमन बीइंग्स में 12 से 20 बार कर सकता है। कोई लोग 1 मिनट में 12 इनहेलेशन एंड 12 एक्सहेलेशन करते हैं, कोई लोग 15 इनहेलेशन एंड 15 एक्सहेलेशन करते हैं 1 मिनट में, कोई लोग 18 एक्सहेलेशन एंड 18 इनहेलेशन करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में एक जगह बैठे, पीछे कुत्ता दौड़ रहा तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन ज्यादा होते हैं, और जो लोग जितनी गहरी सांस लेते हैं और जितनी गहरी बाहर सांस निकालते हैं वो लोग उतने ज्यादा साल तक जीते हैं, एनर्जी ज्यादा बनती है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन एयर इनहेल करोगे उतनी एनर्जी ज्यादा बनेगी। ठीक है, ये समझ में आया, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ये डायग्राम क्या समझा रहा है, ब्रीदिंग समझा रहा है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, एयर के साथ ऑक्सीजन का अंदर आना, ब्लड के साथ मिक्स होके चले जाना, और CO2 का एल्वियोलाई में आना और बाहर फेंक दिया जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 देना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और एक चीज याद रखो कि हमारी टेक्स्ट बुक में 1-2 चिल्लर क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, हाउ मेनी एटम्स ऑफ C, H and O आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते, तो यहाँ देखो फॉर्मूला हमने बनाया है,
फॉर्मूला हमने बनाया है, मतलब सच में हमने नहीं बनाया है फॉर्मूला। वहाँ देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला में क्या है, C6H12 and O6। सो इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आगे जब इसका टॉपिक आएगा तो मैं डिटेल में समझाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी केमिकल में ऑक्सीजन का मिलना, अभी फिलहाल में आप इतना याद रखो, फिर हम साइंस 1 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे तो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। अभी ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, तो इजी वाला याद रखो, कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का मिल जाना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फूड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसको बोलते हैं फूड का ऑक्सीडेशन। जिस चीज़ में ऑक्सीजन मिले हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वी विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी इंटरनल रेस्पिरेशन। वो बहुत मतलब ध्यान देने लायक वाला टॉपिक होगा। तो अभी यहाँ हम रुक जाते हैं। हैव अ नाइस टाइम।